on our secular life also. Sorry, Puruji, I just started recording. Oh, okay, because I hear the voice. Yeah. So I also got disturbed. Yeah. So we got, because I'm afraid my computer's gonna restart. You got a message, and sometimes it's so anyway. So today we're gonna study the meaning of these regulative and principles. Because we say a lot and a little bit superficial. Oh, Prabhu, we have to follow four regulative. So exactly what is these regulative principles? What they entail to us? तो आज हम ये जो रेगुलेटरी प्रिंसिपल है, इनके मीनिंग, इनका मतलब हम अच्छे से जानेंगे। एक्चुअल में होते क्या है, कहाँ से आते हैं, और ये हमें क्या बताते हैं। ठीक है, किस तरीके से हमारे भक्तिमय जीवन को मार्गदर्शन करते हैं। Because today we're going to talk a little bit first, of course, regulation. Regulation is a necessary thing in human society. This is not an animal society. Prabhupada said, regulative principle put us in the level of a human being. If you follow these four regulative principles, we come to the point of being a human being. तो प्रभु जी बता रहे हैं कि रेगुलेटरी प्रिंसिपल कितना जरूरी है। हमें श्रील प्रभुपाद जी ने बताया है कि एक्चुअल में हमें ह्यूमन लाइफ को सही तरीके से जीने के लिए रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो करना कितना जरूरी है, और अगर हम इसको फॉलो नहीं कर पाएंगे तो फिर हम इस मनुष्य जीवन का लाभ नहीं उठा पाएंगे। And actually, it makes a lot of sense because these are it regulates the behavior of a human society. These principles. तो एक्चुअल में जो रेगुलेटरी प्रिंसिपल होते हैं वो हमारे जो ह्यूमन लाइफ है, ठीक है, हमारा जो मनुष्य जीवन है, इसकी दिनचर्या या फिर जो इसका जो रूटीन है, ठीक है, उसको ये निर्धारित करते हैं। And this regulative principles, it touches basically all the facets of the human society, of the society, the human society, correct? तो ये जो रेगुलेटरी प्रिंसिपल है, ये मनुष्य जो समाज है, मनुष्य समाज के हर एक पहलू पे प्रभाव डालता है। So we have regulations and you have the principles. This is the principal regulation for the human society. For example, if I stop in the red light, there's a regulation, but that's not principle. Okay, it could be there, could not be there. I can flaunt it like that. But you see, these regulations, they're very important. They're principles. They are number one. तो प्रभु जी ने बहुत सुंदर एग्जांपल दिया अभी कि रेगुलेशन और प्रिंसिपल में डिफरेंस है। रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स जैसे होते हैं, सपोज कीजिए यदि हम एक ट्रैफिक सिग्नल पे रुके हैं, तो रुकना एक चीज है कि ठीक है कि ट्रैफिक को रेगुलेट करने के लिए रुकना है, लेकिन ये कोई सिद्धांत नहीं है। ठीक है, फिर भी हम चाहे तो नहीं रुक सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो रेगुलेटरी प्रिंसिपल हैं, ये सिद्धांत होते हैं, ठीक है, जो कि हमारे भक्तिमय जीवन को निर्धारित करते हैं। You see, I had a friend and he was incarcerated. He went to prison. So he told me that he was within like maybe 150 people there. So he was telling me that 80% of these people, they are there because of intoxication, like alcohol, drugs, like that. तो प्रभु जी ने बताया कि एक बार प्रभु जी के एक फ्रेंड थे, वो जेल में उनको जाना पड़ा किसी कारण से, और उन्होंने प्रभु जी को बताया कि यहाँ पे जो जेल के अंदर जितने भी कैदी हैं, वो ज्यादा उनमें से 80% जो है केवल और केवल इंटॉक्सिकेशन यानी कि नशे के कारण है। Basically, what they did was they got drunk or they got high in drugs and they did something stupid. तो
अगर साधारणतः देखा जाए तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने नशे का सेवन किया, ठीक है? और वो अपना होश खो बैठे और फिर उन्होंने कोई न कोई ऐसा कार्य किया, जे कानून को तोड़ने का और फिर जिसके कारण वो जेल में चले गए। So if you do something too stupid, then you get to be a felony. The felony is a mark and a record and goes throughout your whole life with you. It's hard to get a job. People always put you down. You know, it becomes very difficult just because one stupid thing. तो प्रभु जी बोल रहे हैं कि इस प्रकार की मूर्खता से कितना बड़ा नुकसान हमारा होता है कि पूरे जीवन भर ये चीज़ें हमारे फ़ॉलो करती हैं। क्योंकि एक बार अगर किसी का नाम क्राइम रिकॉर्ड्स में आ जाता है, तो वो हर जगह उसको इम्पैक्ट करता है, उसको नौकरी मिलने में, कुछ चीज़ें करने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, केवल एक गलती की वजह से। So, in a sense, there's a convergence between regulative principles for a spiritual society, let's say ISKCON, which actually is a Vedic society, because many other societies, they follow this too. The vegetarian, the no gambling, the food, everything. So there's a convergence between these regulative principles for the secular society and for the spiritual society. तो मुझे बता रहे हैं कि इस्कॉन के अलावा और भी अन्य जितने जो आध्यात्मिक संस्था हैं, उनमें भी रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स को फ़ॉलो किया जाता है। जिसमें नशा नहीं करना, भक्षण नहीं करना है, अवैध स्त्री संग नहीं करना है, जुआ नहीं खेलना है, ये चीज़ें आती हैं। सो इस तरीके से अगर देखा जाए तो इस्कॉन और बाकी संस्थाओं का एक ये मिलित प्रयास है रेगुलेटरी प्रिंसिपल को फ़ॉलो करने का। You see, so we're gonna go to the principles and we see how they actually are very purifying for the society at large. तो अब हम देखते हैं कि जो रेगुलेटरी प्रिंसिपल होते हैं, ठीक है? अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो हमारा जो मनुष्य समाज है, उसके शुद्धिकरण के लिए हैं ये। For example, no meat, fish, or eggs. Okay, let's start with this eating. Like most of the time, eating is it's a big part of our life. And if you purify that, you purified a great part of our life. Okay. उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें कि हमें मांस भक्षण नहीं करना है, मछली, अंडा इत्यादि नहीं खाना है, तो अगर केवल इसी एक चीज़ को हम फ़ॉलो कर लें, तो इसी से कितना फ़र्क पड़ेगा मनुष्य समाज में। We can see there's health benefits, you know, uh, in a diet with fruits, grains, uh, uh, so it's what, milk, cheese, right? It's very healthy. It's in the mode of goodness, and it gives life to the body. It promotes longevity. It's very healthy. प्रभु जी बता रहे हैं कि हम इस चीज़ का एक स्वास्थ्य के हिसाब से अगर देखें, तो यदि हम मांस भक्षण नहीं करेंगे, तो हम फल खाएँगे, अनाज खाएँगे, दाल खाएँगे, दूध पिएँगे, चीज़ खाएँगे, मक्खन खाएँगे, तो ये सब कितने हेल्दी हैं खाने के लिए, है ना? तो हमारा ये सब क्या है, भगवद गीता के अनुसार सात्विक आहार है और हमारे शरीर को जीवन प्रदान करता है, ठीक है? हमारी आयु को वर्धन करता है, आयु वर्धन करने में हमारी सहायता करते हैं। Also, a diet like that can lower the rate of heart disease, obesity, other health issues. इसके अलावा अ, इसके अलावा ये जो हार्ट फेलियर के या फिर दिल से रिलेटेड जो भी समस्याएँ हैं, उनकी भी जो संभावना है उसको कम करता है। कोलेस्ट्रॉल है, मोटापा है, ठीक है? इन सब चीज़ों को भी काफ़ी कंट्रोल करने में काफ़ी सहायता मिलती है। So also within the secular society, of course, there is an environmental sustainability that reduce the environment impact associated with the meat production and all the good stuff that you hear in the news all the time. So in the sense, it's a plus for us, it's a plus for the planet, without talking about, the preservation of the life of the cows that they don't have to be slaughtered.
that we're gonna talk about in the other side, you know, or the spiritual benefit. तो प्रभु जी बता रहे हैं कि केवल ये एक रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो करने से ना केवल हमारा बल्कि हमारे ये जो पृथ्वी जो ग्रह है इसका भी कितना फायदा है। ठीक है। पर्यावरण जो सस्टेनेबिलिटी है, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी उसके लिए उसको कितना हैम्पर होता है मीट जो प्रोडक्शन है ठीक है स्लॉटर से। तो लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम अपने लिए और अपने समाज के लिए, पर्यावरण के लिए भी कितना हम फ़ायदा उठा रहे हैं। तो अभी हम काऊ स्लॉटर के बारे में देखेंगे, प्रभु जी हमें बताएँगे कि काऊ स्लॉटर क्यों नहीं होना चाहिए? यस See, प्रभु। what we're trying to do in here is to study a little bit how the four regulative principles is not just an ISKCON principle, it's a Vedic principle for the society at large, for the benefit and upliftment of the society from the material platform to a more transcendental platform. तो अभी हम देखेंगे कि इस्कॉन के जो ये रेगुलेटरी प्रिंसिपल हैं, ये केवल इस्कॉन के नहीं है, ये वैदिक रेगुलेटरी प्रिंसिपल हैं एक्चुअल में, ठीक है? और ये किस तरीके से हमारे समाज का एक किस प्रकार से उत्थान करेंगे आध्यात्मिक दृष्टि से, तो वो अभी प्रभु जी हमें डिटेल में बताएँगे। Okay, then we're gonna go to the next one, no intoxication. Drugs, alcohol. I told you the example, you know, like 80% people that were in that particular prison, they're all there because of drugs or some alcohol. You know, they couldn't control the senses. So then, you know, they did some stupid thing and now they're in prison, you know. So we have that not so good situation there. So that is, okay, go ahead. यस तो प्रभु जी इसके बाद हमें बताएँगे अभी कि नशे के लिए, ठीक है? कि नशा नहीं करना चाहिए हमें किसी भी प्रकार से क्योंकि जैसा अभी प्रभु जी ने हमें बताया कि 80% लोग केवल और केवल नशे के कारण ही जेल में हैं, ठीक है? नशे में आए, अपना होश खो दिया, कुछ न कुछ ऐसा कार्य उन्होंने कर दिया कानून तोड़ने का, फिर जेल में चले गए और जेल में जाके उनका जीवन जो है एकदम बर्बाद हो जाता है, ठीक है? तो ये कितना कष्टकारी है हमारे लिए, तो इसके बारे में अभी प्रभु जी बताएँगे। Prabhupada would often said to reporters come to interview him. He said, "This at that time, you know, this hippies. Give me the hippies, and I'll clean them up. I'll make them good men in society. You see, you know, vegetarian, clean, nice, you know, God-fearing people. You see, that was his, you know, preaching there at that time." तो प्रभु जी बता रहे हैं कि प्रभुपाद जी बोलते थे कि आप मुझे हिप्पीज़ दो और मैं उनको भक्ति में ट्रेन करके उनको एक अच्छा भक्त बनाऊँगा और कि वो लोग भगवान से डरें, गॉड फियरिंग पीपल। हाँ, यस प्रभु जी। And I was not a hippie, but I was a seeker. But there were some hippies, and if I tell the stories of some of the hippies, you know, your hair is gonna stand on end. You won't believe it. And they become good devotees. तो प्रभु जी बता रहे हैं कि प्रभु जी तो हिप्पी नहीं थे, प्रभु जी जस्ट आध्यात्मिक जीवन के बारे में जानने के इच्छुक थे, यानी कि जिज्ञासु थे प्रभु जी। लेकिन फिर भी यदि प्रभु जी कुछ हिप्पीज़ की अगर हमें कहानी बताएँ, तो बोले कि हमें रोंगटे खड़े हो जाएँगे हमारे क्योंकि आज के समय में वो हिप्पीज़ बहुत ही शुद्ध भक्त हैं भगवान के। हम यकीन नहीं कर पाएँगे इस चीज़ का। जी प्रभु जी। So intoxication is a public health, which it is. Uh, so we decrease the prevalence of substance abuse. It lowers the incidence of related health and problems and accidents. You decrease the drug intake in the populace. सदगुरु जी बता रहे हैं कि नो इंटॉक्सिकेशन ये है संबंधित सामाजिक स्वास्थ्य से, ठीक है? अगर नशे का सेवन नहीं होगा, तो फिर जितने भी इंसिडेंट और एक्सीडेंट होते हैं, ठीक है? तो उनकी मात्रा में भी भारी गिरावट आएगी। तो हम देख सकते हैं कितनी सारी जान जो रोड एक्सीडेंट में या नशे के कारण कितनी सारी घटनाओं में होने से जाती हैं। तो कितना सारा फ़ायदा होगा पब्लिक का, जनता का। यस प्रभु। Also,
when you give up drugs, you have mental clarity and higher productivity. It promotes a clear thinking and better decision making. You see, you become a clear thinking person in control of your senses. तो प्रभु जी बता रहे हैं कि जब हम यदि हम नशे का सेवन नहीं करते हैं तो हमारी जो विचारधारा है, ठीक है? हमारी जो सोचने की जो प्रक्रिया है, ये एकदम सुलझी हुई रहती है और हमारी जो निर्णय लेने की जो क्षमता है, ठीक है? तो इसमें भी काफ़ी सुधार आता है। And there is social costs also, because drug-free populace, it reduce society and economic burdens related to addiction, health, and crime. तो नशे से क्या होता है ना कि सब पब्लिक के लिए भी ठीक नहीं है, ठीक है? ये एक सामाजिक समस्या भी है नशा करना। तो यदि हमारा समाज नशे से मुक्त रहेगा तो इकोनॉमिकल ग्रोथ में भी काफ़ी सहायता हमारे समाज को मिलेगी। जो कि हम देखते हैं कि नशे के कारण कितनी सारी समस्या नशे से जो रिलेटेड जो चीज़ें फिर आती हैं, उसके जो प्रोडक्ट होता है ना? तो उसके कारण कितना हमें इकोनॉमिकल नुकसान झेलना पड़ता है। This is only on the material platform in the secular society. See, just these four regulative principles is not just for the Hares, for the Hare Krishnas. It's for the whole society at large. I'm emphasizing. और रेगुलेटरी प्रिंसिपल प्रभु जी बता रहे हैं, ये जो हमारे 4 जो नियम हैं इस्कॉन के, ठीक है? ये ऐसा नहीं है कि केवल हरे कृष्णा वाले या फिर केवल इस्कॉन के लोगों के लिए। ये अगर हम देखें, अगर हम इसको हम भौतिक दृष्टि से भी देखें, तो भी समाज के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ज़्यादा लाभकारी है। So the next one will be no illicit sex or sex outside the marriage, like Prabhupada put it. That we follow that principle, we get family stability. We develop stable family structures, potentially reducing divorce rates and related social issues, child abandonment, all that good stuff or bad stuff. तो अब नेक्स्ट जो प्रभु जी बता रहे हैं हमें कि नो इलिसिट सेक्स, ठीक है? यानी कि अवैध संबंध नहीं बनाने हैं, शादी से पहले भी और शादी के बाद भी। तो इसमें बता रहे हैं कि अगर ये नियम अगर हम पालन करेंगे, तो फिर हमारा जो परिवार है, परिवार में भी स्थिरता आएगी, रिश्तों में स्थिरता आएगी और जिस प्रकार से आजकल जो डिवोर्स रेट इतने ज़्यादा हाई हो रहे हैं, तो वो भी काफ़ी हद तक कम होंगे। और उसका जो एक और कारण है सॉरी उसके कारण एक और जो चीज़ हो रही है कि कपल्स का जैसे डिवोर्स हो रहा है, तो वो बच्चे को छोड़ देते हैं। तो उसका जो बच्चे के जीवन पे जो विपरीत जो प्रभाव पड़ता है ठीक है? तो वो भी नहीं होगा। Also, it helps lower the spread of sexually transmitted disease and particularly unwanted pregnancies, which is it's a kind of a burden to have unwanted pregnancy, and then you have to go, the government has to go look for the father, and the father, it becomes a problem, you see. But if you're doing a larger scale, it's a big problem, see. तो प्रभु जी बता रहे हैं कि यदि हम इस सिद्धांत का पालन करेंगे तो फिर जो शारीरिक स्तर पे जो बीमारियां फैलती हैं, ठीक है? जिस प्रकार से हम देखें एचआईवी है या फिर कुछ और है, ठीक है? तो वो चीज़ों भी कंट्रोल में रहेंगी और जिस प्रकार से अनवांटेड जो गर्भधारण हो जाता है, ठीक है? तो वो क्या होता है कि लड़की के लिए एक बोझ बन जाता है, ठीक है? फिर सरकार पीछे पड़ती है कि कौन है, किसने किया, ठीक है? 1-2 में अगर हो जाए तो ठीक है, देखा जाता है। लेकिन जिस प्रकार से अगर ये चीज़ें बड़े स्तर पे हों, तो सच में एक बहुत बड़ी समस्या है समाज के लिए, जो कि आज हम सब लोग देख रहे हैं। So then we have no gambling, right?
the gambling is an activity that is a little bit like a ghost hunted proposition. One time I was in Las Vegas. We're doing Sankirtan, we're doing our collection for the Mayapur temple, yes, Radha Madhava. And you pass all these places that they have these casinos, these slot machines, and these big lights, blinking here and there. It creates an environment that you forget, where you are. In casinos, they don't have a clock. There's no clocks in casino. You have a watch, yes, but there's no clock. There's nothing that you can see what time is it. And they want that way. They want to keep you like not worry about where we have to be, what you're gonna do. It's true. It's a casino thing. Okay. Prabhuji, what kind of activity is it? It is an activity of Gambling. yeah. Okay. तो प्रभु जी ने बताया कि gambling. प्रभु जी, actually I could not get the definition you told in the first line. Okay. Gambling is activity that is, it tracks a lot of anxiety, a lot of ghosts, because you see, I was about to say that when you see some of these casinos, they're like a ghost hunted place. People cannot see, but it is, it's very negative in there. People suffering, anxiety, money, all these things. Okay, ghost haunted. Buddha. भूत. Yeah, I tell you. हाँ, so प्रभु जी बोल रहे हैं You कि can see for yourself. हाँ, so प्रभु जी बोल रहे हैं कि जो गैम्बलिंग है, जुआ खेलना है, ठीक है? ये एक प्रकार से घोस्ट वांटेड, यानी कि जिस प्रकार से भूतिया जो जगह होती है, ठीक है? तो इस प्रकार की जगह होती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी होती है। तो प्रभु जी एक बार अपना एग्ज़ाम्पल अपना एक शेयर कर रहे हैं अपना पास्ट टाइम कि प्रभु जी जब श्री श्री राधा माधव मंदिर के लिए जब कलेक्शन कर रहे थे, ठीक है? तो प्रभु जी वहाँ पे Las Vegas. लास वेगास में, ठीक है? तो लास वेगास तो शहर है, फेमस है कैसीनो के लिए। इट इज़ फेमस फॉर कैसीनो। Many famous मैं casinos, full या of lights blinking, हाँ। everything to ठीक है। distract you. तो चमचमाता हुआ वो शहर है, हमने कभी उसको देखा होगा मूवीज़ में या सोशल मीडिया कहीं पे भी, ठीक है? तो वहाँ पे प्रभु जी ने बताया कि कोई भी वहाँ पे घड़ी नहीं है, ठीक है? क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि जो भी आए यहाँ पे तो उसको बाहर की दुनिया का कोई होश ना रहे, ठीक है? वो यहीं पे अपना लगा रहे इस जुआ खेलने में। And you see, we're a group of devotees. We're doing a sankirtan in the street. Sometimes you go inside the casinos a little bit before they find you and kick you out. And I see things because I'm not there for gambling and I don't care for gambling. So you look with the eyes of truth and you see people in there. They're laughing. They look like they have a good time, but they're suffering because they're losing money there. Of course they lose, and the casino is making money. And some of the people, they don't have control and they lose money they're not supposed to lose. They lose more than they have. And then there is a whole cascade of business for that. That is people that buy what called pawn shops, buy your watch, lend you money with some incredible rates, and you're desperate, how to go, whatever, it's very full of stress, despite the big smiles and the blinking lights. सो प्रभु जी बता रहे हैं कि प्रभु जी के साथ और भी भक्त थे। ये सब लोग एक ग्रुप में गए हुए थे, तो सब लोग देख रहे थे इधर-उधर। तो प्रभु जी ने बोला कि सत्य की दृष्टि यानी कि जो शास्त्रों की दृष्टि है तो उसे देखना चाहिए। देख रहे थे कि बहुत सारे लोग हैं, हँस रहे हैं, वहाँ पे जुआ खेल रहे हैं, पैसे हार रहे हैं, ठीक है? आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो वो सब लोग क्या है अ, वहाँ पे अ, जैसे सफरिंग है ना, सफरिंग है, वो कष्ट में है वहाँ पे लेकिन उनको पता नहीं है। ठीक है। तो
वहाँ पे और भी चीज़ें थी कि जैसे अगर जिसका सब कुछ लूट गया है, तो फिर उसको आकर्षक दामों पे उसको लोन दिया जाएगा वहाँ पे, है ना? वहाँ से पैसा उधार ले सकते हैं। तो ये भी वहाँ पे सुविधा है कि उसको जीवात्मा को और फँसाने के लिए। And I never forget one time I went inside, right in the beginning of the casino, they have this old lady just sitting there. See, now at that time you put credit card and you just take a whole amount and you just go and there's a lever, there's a lever and you keep pulling, cha-ching, and the thing runs, the three things go on, cha-ching, and the thing goes again. She was not winning and she keeps that thing on. I went there for like 10 minutes. I come back. She was still there. Seems like she was there all night there doing this, trying to win some prize or something. And I thought, this is a miserable life, man. This is terrible. I feel sorry for the lady, the old lady. तो प्रभु जी जब गए वहाँ पे तो एक बूढ़ी औरत को देखा, ठीक है? तो जैसे होता है कि अपना क्रेडिट कार्ड से स्वाइप करो और सारा पैसा निकाल लो, तो उसी प्रकार से वो भी कैसीनो के अंदर एक मशीन होती है, जैसे उसमें वो जो लीवर होता है उसका नीचे करते हैं, तो वो गोल, 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 गोल कुछ नंबर उसमें घूमते हैं, ठीक है? जैसे कि हमें पता चलेगा कि हम कुछ जीते हैं कि नहीं, तो वो वहीं पे ट्राई कर रही थी, जैसे उसको बहुत ज़्यादा समय हो गया। तो प्रभु जी देख रहे हैं कि ये जो जीवन है कितना नारकीय जीवन है ना? किस प्रकार से वो इतने कष्ट में हैं, वो चाह रही है कि कुछ ना कुछ वो जीतें, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। So this is disturbance in society. All these activities performing this disturbance. Of course, gambling also attract illicit sex and intoxication. So, when you are a big gambler, they give you a free room, they give you free, alcohol, right? And you just keep going, and you even don't know what you're doing. So anyway, this is for now for the gambling part. Now we're gonna go for the uh, regulative principles in our spiritual life. तो प्रभु जी बता रहे हैं कि जो ये जीवन होता है, ठीक है? जुआ जैसे खेलते हैं, तो ये जो रेगुलेटरी प्रिंसिपल है, इनका टूटना पूरे समाज के लिए ही हानिकारक है, ठीक है? और ख़ासकर जो लोग जुआ खेलने लग जाते हैं, ठीक है? तो ये जो जुआ होता है, जुए के साथ-साथ क्या होता है शराब और शबाब, हाँ, अगर बोला जाए तो, ठीक है? तो उसका भी लत लग जाती है, ठीक है? और जब कोई इसमें एक्सपीरियंस हो जाता है, कोई जैसे बड़ा जो कोई जुआरी जो कोई फ़ेमस बन जाता है, तो लोग उसको प्रोवाइड कराते हैं कि भैया आपको हम ये सारी जो इंद्र तृप्ति के जो साधन है, वो हम आपको देंगे। So in spiritual practices, no meat, fish, or eggs, a lacto-vegetarian diet is a spiritual discipline, encourage a lifestyle of moderation and mindfulness that supports spiritual progress. तो रेगुलेटरी प्रिंसिपल जैसे अभी हैं, जिस प्रकार से अ, जो वेजिटेरियन जो डाइट है, ठीक है? या फिर जो कृष्ण प्रसादम है, ठीक है? यदि हम वो खाएँगे तो ये एक प्रकार का आध्यात्मिक डिसिप्लिन या एक अनुशासन है, ठीक है? जिससे कि हमारे मन को शांति मिलती है और हमारी जो सोच विचारने की जो क्षमता है, वो भी काफ़ी हमारी जो है उसमें भी सुधार आता है। This vegetarian diet has two levels of understanding. First is compassion and non-violence. वो जो बता रहे हैं कि जो शाकाहारी जो भोजन होता है उसमें 2 लेवल हैं। एक तो पहला होता है कि नॉन वायलेंस वाला कंपैशन यानी कि करुणामय भाव वाला, ठीक है? कि जिसके अंदर कोई भी हम वॉयलेंस नहीं करते हैं। Then there is the part that karma, killing animals for proper said, killing animals for the satisfaction of the tongue. It makes us incur in karma, in reactions for the food we're eating. You see, so
It's like if we try to develop Krishna consciousness, and if you cannot be a vegetarian, it's like one foot in the accelerator, one foot in the brake. We have to take the foot from the brake and keep the accelerator going. So प्रभु जी ने कितना सुंदर बताया तो जो दूसरा चीज है वो ये है कि जो ऐसे ही डाइट की जो कि हमारे जो कार्मिक जो रिएक्शन है उससे फ्री हो, ठीक है, जिससे कि हमें कोई भी कर्म का प्रभाव ना लगे। जिस प्रकार हम नॉनवेज वगैरह खाते हैं तो उसमें कर्मों का प्रभाव लगता है, लेकिन श्री प्रभुपाद जी ने हमें बोला है कि हमें यदि कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ना है तो हमारी जो डाइट है वो कर्म फल से रहित होनी चाहिए। नहीं तो ऐसा होगा कि जिस प्रकार से यदि हम कोई गाड़ी को आगे चलाने के लिए एक्सीलेटर पे पैर रखते हैं और दूसरी तरफ हम ब्रेक में भी साथ में अगर पैर रख दें तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। तो हमें क्या करना है, हमें ब्रेक से डाइट लेनी है और एक्सीलेटर को हमने दबाना है। You think about this. Krishna said in the Bhagavad Gita, Suridam Sarva Bhutanam. I'm the friend of all living entities, not just the humans, not just the men or the women or the children. Everybody, all animals, all insects, every living entity, they are a special relation with the Supreme Lord in this creation. तो प्रभु जी बता रहे हैं भगवद गीता का एक श्लोक, सुहृद सर्वभूता नाम, ठीक है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि भगवान ये नहीं बोल रहे हैं कि वो किसी स्त्री का, पुरुष का या फिर मनुष्यों का ही, ठीक है, या फिर किसी एक पर्टिकुलर किसी का भगवान हितैषी है। नहीं, भगवान हर एक जीवात्मा के समान रूप से हितैषी हैं, ठीक है, और सभी के साथ भगवान का एक विशेष संबंध है। So we have to be compassionate, non-violent towards the creatures that are less, apparently, less intelligent than we are. We can take control over them and exploit them just for the satisfaction of the tongue. तो हमें अन्य सभी जीवात्माएं जो कि चेतना के स्तर पे जो अभी मनुष्य के जितने स्तर पे नहीं है, तो हम, क्योंकि हम उनको कंट्रोल में कर सकते हैं, तो हमारा उनके प्रति जो भाव है वो करुणा का भाव होना चाहिए और नॉन वायलेंस का जो भाव है वो होना चाहिए। नहीं तो हम क्या करेंगे, हम शोषण करेंगे अपनी अ, इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपनी जीवा की तृप्ति के लिए। सो ये चीज का हमने ध्यान रखना है। And some of you students living with your parents, maybe you are a little anxiety. Oh my God, you know, my family, they cooking stuff and what to do, you know, and all that anxiety that comes from that particular, you know, part of devotional service. And you stop because you cannot take control of your food and you can take some control and you feel very bad for that. सो कुछ जो जैसे स्टूडेंट होते हैं, जो छात्र हैं, वो देखते हैं कि उनका जो परिवार है, ठीक है, तो परिवार में इतना व्यवस्था नहीं हो पाती है, ठीक है, और उसके कारण उन्हें काफ़ी चिंता और काफ़ी ज़्यादा जो एंग्जायटी उनको हो जाती है, ठीक है, क्योंकि परिवार जो है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। So the first thing is that you should establish with your family that they respect your choices of being a lacto-vegetarian, actually to be a prasadarian, that you eat prasadam and you serve, you offer prasadam, you serve in a certain way. They should respect that, and that will be the dialogue you're gonna do with your parents as far as you can do. Not getting fights, anything. You're gonna be an adult telling your preferences. They'll respect you.
तो प्रभु जी बता रहे हैं जो सबसे पहली चीज़ है हमें अपने परिवार के साथ एक अच्छा संबंध हमने स्थापित करना है। ठीक है? कि कम से कम हम जो लैक्टो वेजिटेरियन डाइट है यानी कि जिसमें हम डेयरी प्रोडक्ट्स का भी हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है? कि कम से कम हम उतना लिमिट रखें और उसमें भी हम भगवान को भोग लगा के हम प्रसाद का ही सेवन करें। तो हम घरवालों की रिस्पेक्ट करें और घरवाले भी हमारे इस चीज़ की रिस्पेक्ट करें। हम घरवालों के साथ थोड़ा बातचीत करें। ठीक है? कोई भी लड़ाई-झगड़ा, किसी भी प्रकार का वाद-विवाद, बहसबाजी घरवालों से नहीं करनी है। अब हम अपने पेरेंट्स को, ठीक है? अपने जो भी प्रेफ़रेंसेस हैं, ठीक है? भक्ति के हिसाब से, ठीक है? हम उनको बता सकते हैं कि मुझे नॉन-वेज वग़ैरह या इस प्रकार का कोई भी जो चीज़ें हैं, नहीं खानी है। And some of you, you're gonna say, but what about after conversation, there is a problem in there that we cannot see eye to eye with my family. They eating these things, you know. And, you know what I'm trying to talk about in here. प्रभु जी, आई कुड नॉट गेट इट। Okay. Some of you may it's well, I tried to talk to my parents, but it didn't work out. You know, they don't respect my choice. हाँ, तो कई बार ये भी हो सकता है कि आप घरवालों के साथ बात करें, ठीक है? और लेकिन घरवाले फिर भी आपके जो चॉइस है, ठीक है? तो उसको ज़्यादा भाव नहीं दे रहे हैं। In that case, you become tolerant, you become compassionate towards your parents. You just don't know. And don't think Krishna, he is a, angry God with a whip. They're gonna, beat you up because you are in a situation that you have no control. So Krishna understands your situation. You forgive you as long as you keep desiring to have your proper diet, to offer your prasadam to Krishna, you know, you carry on, and Krishna in the heart. This is another class that I'm gonna give about Paramatma. You know, your best well-wisher, your best friend in the heart, Paramatma. You pray that in the heart, the Krishna will soften the heart, and you'll be tolerant and patient. तो गुरु जी बता रहे हैं कि यदि किसी की बातचीत करने के बाद भी यदि घर में बात नहीं बन पा रही है, तो कोई बात नहीं। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है, हमें सहिष्णु बनना है ना? हमें सहना है क्योंकि जो सहता है वही रहता है। हमें अपने माता-पिता के प्रति जो करुणा का भाव है वो रखना है कि देखो क्योंकि वो कृष्ण भावनामृत को अभी समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है? तो हमें ऐसा नहीं सोचना है कि भैया कि भगवान श्री कृष्ण तो हाथ में क्या बोलते हैं वो कोड़ा है ना? कोड़े मारने वाला जो होता है कोई वो लिए हुए हैं और हमें मारेंगे क्योंकि हम डाइट नहीं ले पा रहे हैं ऐसी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कृष्णा इज़ वेरी कंपैशनेट सो वो हमें क्षमा कर देंगे। हमें अपने अंदर डिज़ायर रखनी है कि भैया हम जो कुछ भी खाएँ, हम भगवान को भोग लगा के खाएँ, ठीक है? और अपने हृदय में भगवान श्री कृष्ण परमात्मा के रूप में विराजमान हैं, जिसके बारे में प्रभु जी एक अलग से क्लास लेंगे। तो हम उनसे प्रार्थना करें, ठीक है? सो भगवान बहुत ही ज़्यादा दयालु हैं। So being compassionate to them, you don't, what do you call that? You don't face them up front with a fight position. What are you eating this? You are in illusion. You're Maya. You have to be compassionate. You kindly, better explain with reason. There's so many good reasons to be a vegetarian, and we can give another class for that. For example, I can just tell that the intestine is not meant to digest meat because uh, our intestine is long and the meat gets putrefied by the time it comes to the end. The tiger has a short intestine, so it immediately goes out and it doesn't suffer like we would suffer all these diseases and everything. हुँ। तो प्रभु जी बोल रहे हैं कि हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि घरवालों के सामने लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाना है, ठीक है? तो हमें क्या करना है और ऐसे नहीं कि मतलब
लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाएँ, उनको बोले कि भैया आप तो माया में हो, आप तो भ्रम में हो, अभी आप समझ ही नहीं पा रहे हो चीज़ों को, है ना? तो उसके बजाय हम ये चीज़ कर सकते हैं कि एक अच्छा उनको रीज़न दे के बताएँ, क्योंकि बहुत सारे रीज़न हैं और बहुत सारे जैसे सेलिब्रिटीज़ भी हैं, बहुत सारे लोग वेजिटेरियन हैं, ठीक है? तो हम कोई ना कोई रीज़न उनको अच्छा रीज़न देके उनको शांतिपूर्वक तरीके से हम उनको समझाने का प्रयास कर सकते हैं। और एक रीज़न जो प्रभु जी ने बताया है कि हमारी जो आँत है, ठीक है? हमारी आँत जो है लंबी होती है, ठीक है? और आँत लंबी होने के कारण अगर मांस अगर उसके अंदर ज़्यादा समय तक रहेगा तो वो सड़ेगा और कोई न कोई बीमारी पैदा करेगा। जबकि जो शेर होता है उसकी आँत जो है वो छोटी होती है और जल्दी कोई भी मांस खाया हुआ है या वो मांस ही खाता है तो वो जल्दी बाहर उसका डाइजेस्ट होके निकल जाता है। When we were in Korea, South Korea, sometimes we have to eat in this restaurant. It's it's a very famous because they have a whole chain. And once you go inside, there was like a photo with little pictures of different celebrities. They are vegetarian. So you know Tom Cruise is vegetarian and Michael Jackson is vegetarian. But they say there, I didn't call them to ask. So I was surprised to see that a lot of great celebrities, they're vegetarian. They don't take, uh, you know, meat. Some of them are vegan. Even milk they take. So that is a good point to mention to your parents. I'm not crazy. Look, a lot of people, celebrities, they also vegetarian. It's a good thing. A good thing. तो प्रभु जी बता रहे हैं जब प्रभु जी एक बार साउथ कोरिया में थे तो उन्होंने एक रेस्टोरेंट पे जो कि बहुत ही फेमस फूड चेन है, तो उसके रेस्टोरेंट पे गए और देखा कि वहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ थे जिनमें कुछ सेलिब्रिटीज़ थे, जैसे माइकल जैक्सन और भी कोई सेलिब्रिटीज़ थे। तो उन्होंने देखा कि ये सब भी वेजिटेरियन हैं, तो हम अपने पेरेंट्स को बता सकते हैं कि भाई मैं कोई पागल इंसान नहीं हूँ, ठीक है? कि जो मैं वेजिटेरियन बनने जा रहा हूँ। आप देखो कितने सारे लोग जो वेजिटेरियन हैं, ठीक है? हम उनका नाम लेके बता सकते हैं और इसके कितने सारे फ़ायदे हैं। जैसे मैं आपको एक बताऊँ तो विवेक ओबरॉय, तो पहले नॉन वेजिटेरियन थे, लेकिन फिर वो वेजिटेरियन बने और उसके बाद वो बहुत खुश हो गए। ऋतिक रोशन है, ठीक है? तो इस प्रकार से हम कोई भी नाम कोट कर सकते हैं, अगर हमें पता है तो। यस प्रभु जी। Okay, so this is the part because we can all relate to that in the beginning about devotional service. So I'll talk a little bit more about this part of eating process and dealing with the family and everything. Bottom line is you be very calm, be very composed, be very humble. Do not be combative because then you lose your argument in there. You just be patient because they'll turn around. Because the devotee at home is like a irradiation of Krishna Bhakti, and they get affected, but it takes time. That's why you have to be patient and tolerant. हाँ, तो प्रभु जी अभी रेगुलेटरी प्रिंसिपल के बारे में और भी डिस्कस करेंगे हम एक। और अभी जो प्रभु जी बता रहे हैं कि हमें घरवालों के साथ जब भी हम बातचीत करें या कुछ भी ऐसी स्थिति होती है, तो हमें कोशिश करनी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सहिष्णु हों, ठीक है? विनम्र रहें घरवालों के साथ, क्योंकि घर में एक भक्त होने के कारण भक्त होने का मतलब है कि हम कृष्ण भावनामृत को हम रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं, ठीक है? तो अगर घरवाले जब देखेंगे कि भैया भक्ति में आके इसका आचरण अगर ठीक नहीं है, तो ये अच्छा नहीं रहेगा, है ना? तो हमें इस चीज़ का जो है प्रयास करना है। Okay, so then we're gonna go for intoxication and the spiritual life. Now, everything I'm saying here, because there is other spiritual institutions. There's other, Hindus. I hate this word, but I have to use here. Hindus. There's Buddhists. There's a lot of Buddhist restaurants in Malaysia, and they are eating no onions, no garlic. They are 100% vegetarian. They don't use milk.
tofu, yes. So they we're not alone in the vegetarian quest. There's many people, they are with us. And now we're gonna go for the intoxication and spiritual life. They're not compatible. ओके सो इससे पहले कि प्रभु जी नशे के बारे में आए तो प्रभु जी ने एक चीज और बताई है कि जैसे बुद्धिस्ट लोग हैं तो वो लोग भी हमारी तरह ही विदाउट अनियन गार्लिक का ही खाते हैं कुछ लोग ठीक है जैसे कि प्रभु जी ने बताया मलेशिया के रेस्टोरेंट में कुछ बुद्धिस्ट सॉरी मलेशिया में कुछ बुद्धिस्ट रेस्टोरेंट हैं जो कि विदाउट अनियन गार्लिक ही खाते हैं ठीक है तो ऐसा नहीं है कि हम ही लोग हैं जो केवल इस्कॉन वाले ही हैं जो कि बिना अनियन गार्लिक का खाते हैं और भी बहुत सारे लोग हैं जैसे जैन लोग भी हैं ठीक है तो अभी प्रभु जी हमें नशे के बारे में बताएंगे नो इंटॉक्सिकेशन So we need a enhanced spiritual focus because what we're doing is a higher level of consciousness. Now, to maintain clarity of mind and body, which is essential for a spiritual position, for our prayers, for our spiritual development, intoxication doesn't have a place to play in that because it pushes us back. It's like you want a clean house, don't bring dirt from the outside inside, right? And throw, dust all over the place again. यस तो अभी प्रभु जी नशे के बारे में हमें बताएंगे कि क्यों हमें नशा नहीं करना चाहिए क्योंकि यदि हमें भक्ति में आगे बढ़ना है तो हमारा जो सोच है वो एकदम सुलझी हुई होनी चाहिए हमारी डिसीजन मेकिंग जो पावर है जो हमारा फोकस है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए ओके क्योंकि यदि ये सब चीजें नहीं रहेंगी ना तो फिर हम भक्ति में अ, उतना प्रभावी नहीं हो पाएंगे तो इसलिए अभी प्रभु जी हमें आगे इस नशे के बारे में बताएंगे कि इसके क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं I was surprised one time I was working in London. In London, this is the place where they drink. They drink so much. I can't believe it. These people, how they make so much drinks. And so Saturday, Sunday, they're there in the something called pubs. And I'm passing there to go to my house. And there's many pubs, but I look inside. It's beautiful. All these bottles in there, they have different colors with the light behind, and it's like when you sell death with beautiful colors. And I was impressed, the Karmis, they do stuff, they do bad stuff, but they do in a good way. तो प्रभु जी In other जब words, hold on, this is so attractive. You see all the color, there's even the advertisement in the magazines and all these things, they know how to advertise and catch your mind and, make you buy the product. And this product is not helping you in any way. It's like they're selling you some demon, in the cup. जो प्रभु जी बता रहे हैं कि जब प्रभु जी लंदन में जब काम करते थे ठीक है तो उन्होंने क्या देखा सैटरडे संडे जैसे पब होते हैं तो वहाँ पे एक अलग ही माहौल होता है तो प्रभु जी जब घर पे जाते थे ठीक है तो उस रास्ते से जब गुजरते थे तो उन्होंने देखा कि किस प्रकार से जो ये पब है कितना कलरफुल यहाँ का जो माहौल होता है ये बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव होता है ठीक है लेकिन देखा जाए तो जैसे what did you say That कब in these the last things, they're bad, but they make attractive. yeah And because they're attractive, we forget that we have something that's very dangerous for us, for what we want to be. And sometimes we forget that, and then we fall into that particular situation.
हाँ, तो ये सब चीज़ें ना बहुत ज़्यादा आकर्षक लगती हैं देखने में, ठीक है? हमें लगता है कि यही वो चीज़ें हैं कि जिनकी हम तलाश कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ये वो चीज़ें हैं नहीं। तो ये हमारे लिए क्या है, एक ट्रैप है, एक जाल है जीवात्मा के लिए। The thing is, a devotee does not ever want to lose his clarity of consciousness, his focus. He doesn't want to be taken by the mind and influence, external influence, in this case, the drug or the alcohol or something else. He wants to be in control. He's a yogi. A yogi should be in control all the time of his mental faculties, his mental clarity. And not for a second he give up on that for any reason. And that is the yogi. तो जो एक भक्त होता है वो कभी नहीं चाहता कि उसका जो ध्यान है वो कहीं भी भटके, ठीक है? या फिर उसकी जो सोच है वो या फिर उसकी जो चेतना कहीं डगमगा जाए, वो ऐसा वो कभी भी नहीं चाहता है। बल्कि वो चाहता और वो ऐसे भी नहीं चाहता कि वो किसी बाहरी तत्व के द्वारा वो कंट्रोल्ड हो, ठीक है? तो भक्त हमेशा चाहता है कि वो एक योगी की तरह हमेशा कंट्रोल में रहे, ठीक है? और उसका मन है वो हमेशा नियंत्रण में रहे, फ़ोकस रहे अच्छे से और 1 सेकंड के लिए भी इधर से उधर ना भटके। So this is the regulative principle. So this is the principle that upheld self-control and discipline, which in turn will bring purity and devotion and pure lifestyle. हाँ, तो ये एक रेगुलेटरी प्रिंसिपल है, ठीक है? तो जो कि हमारे जो सेल्फ डिसिप्लिन है, ठीक है? और जो प्योरिटी है, उसको हमेशा वरीयता देता है। This is good for our spiritual life, it's good for the society at large, for everybody. तो ये हमारे समाज के लिए भी अच्छा है, ठीक है? और सामान्य जनता के लिए भी बहुत ही अच्छा है। हर एक के लिए, हर एक जीवात्मा के लिए ये बहुत ही अच्छा है। Next on the list to have illicit sex, sex outside the marriage. There's a moral and ethical process. Morality is important. See, to be ethical about our life, you know, you build up character. So we reinforce values of fidelity, chastity, respect for sacred relationships. Now, chastity, you can translate that. We're going to go for the next. यस, तो अभी प्रभु जी बता रहे हैं कि यदि हम अवैध संबंध वाला जो रेगुलेटरी प्रिंसिपल है, ठीक है? तो उसका पालन नहीं उसके बारे में भी प्रभु जी बता रहे हैं कि एक अ ये एक नैतिकता है, ठीक है? तो हमारे जीवन की नष्ट हो जाती है इससे, ठीक है? हमारे जीवन की जो पवित्रता है वो इससे नष्ट हो जाती है। क्योंकि जो रिश्ते होते हैं, ठीक है? तो उसके लिए क्या है हमारा जो चरित्र है वो बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है, ठीक है? हमारी क्या वैल्यूज़ हैं, ठीक है? और हम कितने एक-दूसरे के प्रति कितने वफ़ादार हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अ, संबंध में। Now, we heard a lot the man telling the women to be chaste. Chastity is a superpower for the women, but they have to understand how to use and to attain that superpower. सतगुरु जी बता रहे हैं कि ये जो चैस्टिटी है, ठीक है? यानी कि जो पतिव्रता जो ये चीज़ है ना Or the word ये pativarta. Huh? या पतिव्रता, ये एक स्त्री के लिए सुपर पावर है, ठीक है? ये एक स्त्री के लिए सुपर पावर है और ये चीज़ जो है हमें समझनी चाहिए। So the man is telling the women to be chaste all the time, but there's a problem here because the women should be chaste, the man should be chaste too. हाँ, तो प्रभु जी बता रहे हैं
कि आदमी तो बोल देता है अपनी पत्नी को कि भैया आप पतिव्रता बनो, ठीक है? लेकिन अगर आदमी को भी तो एक पत्नीव्रता होना चाहिए ना, नहीं तो फिर तो बात नहीं बनेगी बिल्कुल भी। The women should be chaste to the man, yes, but the man should be chaste to Krishna and Gurudev. तो स्त्री को तो होना चाहिए कि वो पतिव्रता रहें और जो पति है, पति को रहे कि वो अपने गुरु से और कृष्णा के प्रति वो भी अ, अच्छे से मतलब समर्पित रहें। If the man is not following properly all these stipulations in four regulative principles, if the man is not properly taking attention for his wife, he's not being chaste to Krishna because Krishna gave him the wife so he can take care of the wife because Krishna is busy dancing the rasa dance and he doesn't want he wanted you to take care. He's he put you in charge to take care of the wife nicely with love and devotion. See? तो प्रभु जी बता रहे हैं कि यदि यदि कोई आदमी अपनी पत्नी का अच्छे से ध्यान नहीं रख रहा है, ठीक है, जो कि कृष्णा ने उनको दिया है कि भई आप इनका ध्यान रखो अच्छे से, ठीक है। तो यदि वो अपनी पत्नी का ध्यान नहीं रख रहा है, तो इसका मतलब है कि वो कृष्णा के प्रति वफ़ादार नहीं है, अपने गुरु के प्रति वो वफ़ादार नहीं है, ठीक है। उनके जो भी इंस्ट्रक्शन उनको फ़ॉलो नहीं कर रहा अच्छे से, क्योंकि कृष्णा तो बिज़ी है ना अपने रास डांस में, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने आपको बोला है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि भैया इनका ध्यान आप रखो, ठीक है। तो इस चीज़ को हमने बहुत ही अच्छे से समझना है भक्ति में आने के बाद कि यदि हम अपने परिवार का भी अच्छे से ध्यान रख रहे हैं, ठीक है, तो दैट मीन्स वी आर फॉलोइंग कृष्णा कॉन्शियसनेस एक्चुअली। Yes. If it's okay, I'm hearing voice in there. Good. यस प्रभु जी। It's और nothing, right? नो, नो। Okay. So the women, yes, she is chaste to the husband, and the man is chaste to Guru and Krishna because it's his duty to see that the wife is, because you have to see the mind of the wife to understand what is the proper, not engagement, but how to guide her to be the best she can be so you can be the best you can be too. Okay? यस प्रभु जी। तो पत्नी पति के प्रति वफ़ादार रहे और जो पति है वो गुरु और कृष्ण के प्रति वफ़ादार है। सो पति ये देख सकता है कि उसकी पत्नी तो वफ़ादार है उसके प्रति और वो किस तरीके से अपनी पत्नी की हेल्प कर सकता है कि वो कितना कुछ कर सकती है भक्ति में, ठीक है? सो ये पति की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हेल्प करे अपनी पत्नी की अ, उसका जो क्या बोलते हैं, जो उसका जो पोटेंशियल है, ठीक है? उसको बाहर निकालने में या फिर निखारने में उसको सहायता करनी चाहिए। And if we do that, we're striving to get to that point, then Krishna, Sri Guru is very happy and the marriage prosper. Lakshmi Devi comes to the house. तो यदि हम इस चीज़ को फ़ॉलो कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि अ, जीवन इस प्रकार से चल रहा है कि पति-पत्नी जो जैसा अभी प्रभु जी ने बताया है, ठीक है? तो गुरु और कृष्ण हम पे सदैव प्रसन्न रहेंगे और लक्ष्मी देवी हम पे सदैव प्रसन्न रहेंगी। हम देखेंगे कि हमारा जो जीवन है, वो कितने सुख और शांति से हमारा जीवन चल रहा है। So I'm just touching a little bit in these points. We can even go deeper in this. Each one of them can be one class, but you get the idea. Okay. Now gambling. Oh, here it's asking that asking, you speak Hindi. It's asking here. Seems like you change your language. So anyway, so gambling is not much of a big deal in devotees. But I know devotees, and I think it's a good brother of mine. He likes to gamble. He goes to the horses in Florida. He gets money. He play the horse. He made money and he lost money, but it's no he played the horse. I think that
personally, if anybody is playing the horse in there, please don't take offense, but I think it's the most stupid thing in the whole world. And but that's a science for everything, and they figure out, which horse is gonna win, all these things, But and then he's gambling, and I thought, how would he do that? I don't know. It's a weakness, and he fell for it for a while. तो प्रभु जी बता रहे हैं कि फ्लोरिडा में जिस प्रकार से रेस होती है घोड़ों की, है ना? तो ये गैम्बलिंग का ही एक रूप है और प्रभु जी के हिसाब से ये बहुत ही ज़्यादा बेकार की चीज़ है, ठीक है? हमें इस चीज़ में बिल्कुल भी नहीं फँसना चाहिए, ठीक है? कि कौन-सा घोड़ा जीतेगा, ठीक है? लोग घोड़ों के ऊपर इतना पैसा लगाते हैं, इतना दाम खेलते हैं घोड़ों के ऊपर। ये हमने कुछ मूवी सीन्स में भी देखा होगा ना, है ना? सो ये फालतू की चीज़ है हमारे, है ना? तो हमें इस चीज़ से बचना चाहिए। और प्रभु जी बोल रहे हैं कि यदि कोई ऐसा करता है तो उसके लिए सॉरी कोई बुरा नहीं मानना। So we have life, which is very methodical. Some of you go study, come back home, go to sleep, get up. Some of you are working. So some people, they go gambling, they feel very excited because there is outcome they cannot predict. There's uncertainty, and they are what do you call attached to this uncertainty. And there is money also, of course, what makes everything more tasty. तो प्रभु जी बता रहे हैं कि जो गैम्बलिंग होती है, गैम्बलिंग ये जो जुआ होता है, जुआ का अ, जो इसका रिज़ल्ट होता है, ठीक है? तो वो निश्चित नहीं होता है और जो जुआ खेलने वाला होता है, वो इसी अनिश्चितता से ही वो अटैच हो जाता है, ठीक है? इसी अनिश्चितता से ही वो जुड़ जाता है कि कुछ भी हो सकता है ना इसमें। हो सकता है कि नहीं निकले और हो सकता है कि एकदम बम्पर फाड़ के ही उसको रुपया पैसा कुछ मिल जाए। तो लेकिन ये चीज़ ठीक नहीं है, हमें इस चीज़ से बचना चाहिए। So we have to be careful because this thing can, I would say, pollute the mind or agitate the mind that takes your focus in your proper Krishna contact. The vote is simple. He doesn't play with the material energy. He doesn't play for, uncertain outcome. He's chant the holy name. He takes prasad. He preaches. The simple life is what saves him. If you go like no Bet Masterson, and is that he's he was a famous poker player, in the 1800s. So if you go like that, and try to make, think you're gonna get something out of this, even if you make money by gambling, you're losing your most precious benefit of your uh, good mind in these things. You're losing your consciousness a little bit because of mental speculation. Sorry, Puruji. I I could not hear properly the first part because there was some disturbance from my side. Disturbance. There is disturbance in the force. This is the gambling. He agitates the mind, and that's not good for the body. The body is simple, is honest. You see, is honest. Okay, and I can tell one thing that every time before the vote, I try to gamble. I hate gamble. I cannot bluff. I cannot lie. I feel terrible, and I cannot. People look on my face. They know exactly what I have in my hand. So it is, no, it is what it is. Maybe from previous life, I already got away from this gambling position. So प्रभु जी बता रहे हैं कि जो गैम्बलिंग होता है ना वो हमारे जो मन है ना हमारे मन के लिए हमारे दिमाग के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है क्योंकि ये हमारे मन को जो है चार्ज कर देता है नेगेटिवली, ठीक है? तो उसके ऊपर नेगेटिव प्रभाव डालता है क्योंकि हमारा मन जो उत्तेजित हो जाता है, ठीक है? उत्तेजित किस प्रकार से होता है जो प्रभु जी ने अभी इससे पहले बताया ना कि हम
जो अनिश्चितता से ही हम जो है अटैच हो जाते हैं, ठीक है? तो यदि हम अनिश्चितता के साथ अटैच हो गए, तो हमारा मन निश्चित रूप से उत्तेजित रहेगा ही और किसी न किसी प्रकार की जो एंग्ज़ायटी है, ठीक है? जो चिंताएँ हैं, उसको हमेशा जो घेरे रहेंगी। सो प्रभु जी बता रहे हैं कि प्रभु जी को तो गैम्बलिंग से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और प्रभु जी झूठ भी नहीं बोल सकते हैं। सो कोई भी उनके चेहरे को पढ़ के, उनके चेहरे को देख के बता सकता है कि उनके मन के अंदर क्या है। प्रभु जी इतने शुद्ध भक्त हैं और ये हमारा सौभाग्य है कि हमें इनका संग मिल रहा है। या प्रभु जी, थैंक यू सो मच। I can tell you one thing. As a devotee, I gamble. One time, I was in a situation that I have to decide my life, and it was a very tough situation. I couldn't see the outcome. I prayed, I did so many things. Finally, I said, Krishna, I'm in gamble for you. I put my bet on you. I put my chips on you. I lose everything or I gain everything. It's all on you. And it was a big payoff. Hare Krishna. हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रभु जी ने अभी बहुत ही अच्छी कुछ चीज़ शेयर की है, लेकिन मैं सुन नहीं पाया हूँ ठीक से। अगेन प्रभु जी, Uh, actually I have to leave now. I'm really very, very sorry. By your permission. okay. हाँ, You या finish this translation about putting the chips on Krishna, and then you can go. हाँ, तो प्रभु जी ने बताया अभी कि एक बार प्रभु जी देखो प्रभु जी ने सच बोला है कि प्रभु जी ने अपने जीवन में एक बार जुआ खेला है, ठीक है? तो प्रभु जी ऐसी स्थिति में थे कि क्या करें, ठीक है? सो प्रभु जी ने भगवान को याद किया, ठीक है? कि सब कुछ दाँव जो है भगवान के नाम पे ही प्रभु जी ने लगाए हैं, ठीक है? तो मैंने सच में ठीक से नहीं सुना ये, तो मैं इसलिए ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा। I'm finalizing here, Prabhu. I'm just putting all together. Some of you think, or you begin your devotional service, you think the regulative principles is very hard or maybe not so good, they tie you up, but regulative principles are your best friend. That's what I'm trying to tell you. The regulative principles are your best friend. It saves you from a lot of trouble and keeps you in the good path. तो गुरु जी बता रहे हैं कि हो सकता है कि कुछ लोगों को लगे कि जो ये रेगुलेटरी प्रिंसिपल है, ठीक है, हमारे दुश्मन है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है कि हमें लगे कि इनको फॉलो करना कितना मुश्किल है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये हमारे बेस्ट फ्रेंड है, क्योंकि ये हमेशा हमें सही रास्ते पे चलाएँगे, हमेशा सही रास्ते पे रखेंगे, ठीक है? हमें बताते रहेंगे कि भैया कौन-सा सही रास्ता और कौन-सा नहीं है। तो यदि हमें भक्ति में आगे बढ़ना है, सो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अच्छे से पालन करें। So I think Gaurav I can see some voices calling him. And Sorav, thank you, Sorav, and everybody that coming here. Thank you so much. Don't forget to send your feedback. How do you internalize this discussion on your own life? How make your life better? And I want to hear from you. Okay, it's very inspired for me. You give me the class back. I mean, give you a class, you give a class to me, and I appreciate that. Okay, thank you Yeah, so much. We're gonna see each other again right next Sunday. It's become a regular thing. I hope so. Right? yeah. Okay. तो प्रभु जी बोल रहे हैं कि ये क्लास के बाद प्रभु जी सबसे फीडबैक के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो अभी प्रभु जी ने हम सबको क्लास दी है, इतनी प्यारी क्लास प्रभु जी ने हमें दी है कि प्रभु जी ने रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स के बारे में हमें इतना अच्छे से, इतना डीपली और सिंपली हमें समझाया। सो अभी प्रभु जी जस्ट फीडबैक का रिक्वेस्ट कर रहे हैं और हम हर रविवार को इसी समय प्रभु जी के साथ मिलेंगे, उनका संग हमें मिलेगा। तो मेरे सभी डिवोटी से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ प्रभु जी का एसोसिएशन पाने के लिए आप हर संडे को ये वाली क्लास ज़रूर अटेंड करें।
और क्लास का फीडबैक भी प्रभु जी को ज़रूर दें और एक बार अपना कैमरा ऑन कर लीजिए सो दैट कि प्रभु जी हम सबको देख पाएँ। Thank you, Prabhuji. With your permission now, with everybody's permission, I प्रभु wanna. जी, I am really very, very sorry, but I have to No, leave. Prabhu, please, Prabhu. We're all Because working, yeah, we're all students. We all have things, you know. We have to help each other, Prabhu. yeah, because there is some family commitment and I have to go out You please, of my you do home. what you gotta Yeah. do. Okay? We talk some more next time. So, Rav, thank you for you. I see you there, you know, ready to jump Thank you, in. Prabhuji. Please bring हाँ, us तो सभी consider बच्चों का बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप सभी रेगुलर आ रहे हो प्रभु जी की क्लास में। दैट मीन्स कि आपको जो गाइडेंस चाहिए, वो गाइडेंस आपको प्रभु जी की क्लास से आपको मिल रहा है, ठीक है? सो मैं सभी डिवोटी से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि यदि मैं सबसे यही प्रार्थना करूँगा कि यदि मुझसे कोई गलती हुई है, गलतियाँ बहुत सारी हुई हैं मुझसे ट्रांसलेशन में, सो मैं उसके लिए क्षमा चाहूँगा सभी से। और आप क्लास के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों को बताएँ, क्योंकि प्रभु जी का जो गाइड करने का तरीका या जो We क्लास will. लेने का जो तरीका है, वो बहुत हाई फिलोसॉफिकल नहीं है। बहुत ही सिंपल और साधारण तरीके से प्रभु जी हाई फिलोसॉफी को बताते हैं। तो कोई भी इंसान, भले ही वो भक्त ना हो, वो आसानी से प्रभु जी की बातों को ग्रहण कर पाएगा और अपने जीवन को निश्चित रूप से सफल बनाएगा। Yeah, Yeah, thank sometimes you, you have to Prabhuji. do, yes, sometimes you have to do the basics to get to the high philosophy. Even Michael Jordan, he was doing the basics of basketball, running the court, practicing, you know, basket. You know, you become great by doing the basics, and this is the basics. You focus again why regulative principles are important. They are our best friend. Okay, thank you, Prabhuji. I think they all speak English. They think Yes, yes, thank you, Prabhuji. I'm grateful to you and I'm grateful to God of Prabhu. प्रभुजी बहुत yes. अच्छे आपने ट्रांसलेशन किया। ये गलती कोई बात ही नहीं है क्योंकि आपने इतने एफर्ट दिया हम लोगों के लिए। बहुत ज्यादा प्रभुजी, आपके चरण में बहुत धन्यवाद। Okay, with your Thank you so permission, Prabhuji, all your please, permission, I go now. no, Okay, Prabhuji. Haribol. हरि बोल। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरि Don't बोल। forget the feedback. यस प्रभु जी। Okay. हरि बोल।